Good morning. It is so nice to have you here in our studio. I know that you are from different parts of the country, you speak different languages, and you also study different subjects. So you are a really multidisciplinary cohort here sitting. Let us have some discussion on some of the issues that may be bothering us, not only as a country but as a global community. Recently we have seen India successfully conducting the G20 presidency, and the G20 summit was held last month, and India has emerged as a global consensus builder, because if you look at the world, you see that there are many challenges that all of us are confronting with. The first challenge that you see is the uneven economic growth. There are instabilities in the economic systems, and we also see all around extreme poverty in the world, multidimensional poverty. You know what is multidimensional poverty? It is lack of access to health facilities, lack of access to education, lack of access to opportunities in general. So this is one major challenge that is confronting us as a global community. And the other challenge that we see is the climate change, because climate change is very closely related to environmental degradation, reduction in the biodiversity, pollution, deforestation, desertification, and lack of access to clean water. There are so many such issues which are affecting the climate change. We are now as a global community struggling to keep the global temperature increase below 2 degrees centigrade as compared to the pre-industrial global temperature. So it has become a major challenge for us. The other challenge that G20 also discussed and they came to a consensus was the reduced opportunities for women and girls. Women and girls are not getting enough opportunities to function at their full potential. So how do we ensure that any development that takes place is women led development? This is another topic the G20 summit discussed. While there are many such challenges, we also have many opportunities in front of us. Especially India is leading in many areas. One great example where India has succeeded and is an example for the rest of the world is the digital public infrastructure. The digital public infrastructure that we have built is based on open source code, it is interoperable, and it is highly secure. Today, nearly 40% of the global online financial transactions that are taking place in India. You can go to a vegetable vendor and pay using your phone, or when you get off from the auto, you pay to the auto driver using your phone. It was unimaginable just few years ago. Recognizing this fact, in fact G20 has made India a repository for digital public infrastructure. And you have also seen recently India putting Vikram lander on the south pole of moon.
The entire world was looking at this experiment. You have also seen the solar mission, the Aditya solar mission of India going ahead in a successful way. There are many such examples where India is leading. For example, drone technology. By 2030, it is expected that India will become the third largest country in using and developing and operating these drones. So, while there are challenges and there are also opportunities, as students, as young people, um, how do you address these challenges and how do you capitalize the opportunities that are there in front of you? So, these are some of the things that I would like to discuss with you. And obviously, if you want to address the challenges, if you want to become a solution provider, a problem solver, you must have access to high quality education. And similarly, if there are many opportunities coming in front of you, if you want to capitalize those opportunities, you must be skillful, you must be knowledgeable, and you should be in a position to apply this knowledge in order to capitalize the opportunities that come to you. So, the national education policy provides you an opportunity to prepare yourself to be critical thinkers, to be problem solvers, to be solution providers, and it also enables you, once you become knowledgeable, once you become skillful, you will also be ready to take risks in your life. Whenever you take the risk, there is a possibility that you can fail also. So, it will prepare you how to use those failures, learn from there and move forward. So, friends, I am thankful to you for being with me today to have a detailed discussion on how we can face the challenges and how we can capitalize the opportunities so that we can build a highly progressive developed country. Remember that we have set a goal for ourselves during this Amrit Kal. We need to work very hard so that by 2047 India will become a fully developed country. So, how can we achieve such a goal? So, let us have a small dialogue on the issues that I have put in front of you. So, any one of you can ask a question. Yes, sir. Sir, my name is Dusha. I am from Punjab University, Patiala. I am a student of psychology honors third year. सर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला की तरफ से एक मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स लॉन्च किया गया था 2021 में. वी वर द फर्स्ट बैच ऑफ दैट कोर्स. बट सर जो एक एक्सपेक्टेशंस होती है हमारी किसी भी चीज़ से, या जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी एक फ्रेम है, जो यूजीसी गाइडलाइंस हैं, बट जो यूनिवर्सिटी में सर हमारे फॉलो हो रहा है, we were the 600 students of that batch. Okay. University started that course in 5 different streams. It's social science, physical and chemical science, biological sciences, PVA and music, sir. Right. So, sir, the challenge we face that is कि the program that university started is very unstructured. उसका कोई structure नहीं है, sir. Okay. Like अभी तक जो फीसेज हैं जो हमारे कोर्सेज की मल्टी डिसिप्लिनरी की, वो नॉर्मल कोर्सेज से ज़्यादा हैं, थोड़ी हाई है. बट वी डोंट गेट अवर रिजल्ट्स ऑन टाइम. अभी तक सर हमें 2 साल हो गए हैं, बट यूनिवर्सिटी साइट पे हमारा रिजल्ट नहीं आया है. Right. हमारे ऑर्डिनेंस भी यूनिवर्सिटी साइट पे नहीं है, हमारे कोई भी बायोडाटा यूनिवर्सिटी की साइट पे नहीं है. एक्चुअली यूनिवर्सिटी ने अभी तक हमारा कोर्स रिकॉग्नाइज भी नहीं किया है. Okay, let me here. I get the point that you are saying. There are two issues here. One is any university announcing the results on time, conducting the examinations on time, starting the academic session on time. It's very important because the students who study in a particular university, when they pass out, they may want to join in some other university for higher education, and if the academic sessions do not match, if the results do not come on time, you will have difficulty in getting admission or in getting employment. Therefore, UGC has been consistently in dialogue with the universities, and we also write frequently to make sure that these kind of delays do not happen. The second issue
that you have raised, the multidisciplinary education. Um, why do you want to study multidisciplinary education at all? Why do you want to pursue multidisciplinary education? Why can't I just study only psychology or economics or only physics? Let me cite a couple of reasons why it should be done. First of all, it is known you are a student of psychology, and cognitive researchers have clearly shown that when diverse thinking people come together, new ideas are generated. So similarly, when you study multiple subjects, you become more creative, and you start questioning, and questioning, curiosity will lead to uh, creation of more knowledge, new knowledge. And that is why we want to promote the multidisciplinary education, because if you want to be innovative, the first step is to be creative. Creative means generating new ideas in your mind, and that will happen if pharmacy students meets and has a dialogue with an economic student, or economic student meets and has a discussion with a psychology student, because we are coming from multiple disciplines. The other reason is that 50 years ago you could predict what kind of jobs will come after 10 years, but today you cannot predict what kind of jobs will come next year. The job profiles are changing very quickly. So therefore, if you are trained only in one discipline for 3 years, 5 years, and you come out of the college and you find that your knowledge is not actually suitable for the kind of job opportunities that are coming, and that is the reason why you need to go for multidisciplinary education. And I also understand the challenge that some colleges may have in offering the multidisciplinary education, because you may not have experts in that domain, right? Yes, I will give you one example of multidisciplinary education. Now we have introduced 4-year undergraduate program, so you can do a major, you can do a minor, or you can do 2 majors as part of the undergraduate program. Let us say you want to major in physics, but you want to minor in economics. So that will lead to a new discipline known as econophysicist. Econophysicist is an expert who uses the physics models to solve the problems in economy, and that is what is the meaning of multidisciplinary education. So if there are not enough experts in your college to teach, UGC has now provided the opportunity to you. You can actually do online courses through SWAYAM and earn those credits. And once the National Digital University is established, you will have a large number of courses. While studying your own degree, you can also access these courses on the National Digital University and acquire multidisciplinary knowledge, right? So let's go to another question. Any one of you? Yeah. So myself, Himadri Joshi. It's an honor to be here, sir, in front of you. I am from Gujarat University pursuing masters in microbiology. Sir, my question cum suggestion is that in our course we are learning the old methodologies only. Right. Like if I talk about my own subject, microbiology, we are learning how to prepare antibiotics or how to know its use, its effects and all. But we know that antibiotics have been super bugs nowadays in the world. So, and now new strategies have been applied to replace the antibiotics, like bacteriophage therapy is there. Correct. So, as per my perspective, we need to include such technology, such a syllabus that inculcates the current need of the world, and teaches the new current technologies to the students to open up for the new opportunities for them. You are absolutely right. You gave microbiology as an example, but I am sure all of you feel the same. You are coming from different disciplines, and you feel that the curriculum has to be revised, so that what is current knowledge is also part of your education. Typically what happens is, in any discipline, the students have to learn certain basics and fundamentals, right? Once you are
thorough with those basics and fundamentals, you need to be exposed to the modern trends in your discipline through elective courses. So every college and university have to do two things. One, they need to periodically revise the syllabus of every program, and they need to offer a large number of electives to the students so that you have a choice. And this is one thing that we want to do, and we have been working with the universities and trying to motivate them, that we need to provide three things to our students: freedom, flexibility, and choice. So once you have that, you will have a very broad based knowledge. So let us all collectively work to revise the curriculum and to provide more modern knowledge to our students. Yeah. Let's go to the next questioner. Namaste sir, myself Ronak Panchal. Sir, I am currently pursuing B.Pharm from LM College of Pharmacy. Sir, basically the curriculum of pharmacy is designed for the patient welfare, just like MBBS and other patient healthcare programs. So sir, we wish that the study of pharmacy should be in a yearly manner instead of being in a semester wise manner, because sir, it will beneficial or helpful for us to correlate with different subjects in a better manner. So I request UGC to take an initiative in this direction, or sir, I also request you to give some points on this. Okay, so it's a good question. So the debate is between whether we should have 1 year long course and then at the end of the year you have the exams and so on, or we should have semester system. This is a global discussion, but educationists have recognized that a semester system, a shorter duration of the academic session will help the students to learn better. And you can also have continuous evaluation, and that's the reason why most universities have shifted to the semester system. So it's a global practice, and it is good for the students if it is a semester system, right? So it is very unlikely that we will revert back to the yearly examination system at this stage. In fact, in some countries they even have a tri-semester system. Instead of 2 semesters, they even have 3 semesters. Okay, right. Let's go to the next question. Good morning, sir. I am Sashank Mishra. I am originally from Satna, but I am pursuing my bachelor's in data science and artificial intelligence from IIIT Naya Raipur. Right. I am a first year student. I just entered the institute. Sir, my question is, in first semester or in above semesters, we are being taught some humanities courses like environmental engineering and human values. Sir, what are the advantages of these courses in technical fields that we are entering? You see, if you are doing any professional program, it is important that you have some exposure to social sciences, humanities. And the same is true for social sciences, humanities and arts students. They also need to have some exposure to science, technology and what is happening, right? Because ultimately, if you want to find solutions to the challenges, we need to work as a teams. I will give you one example. Let's say during COVID pandemic, we wanted to develop a model, a mathematical model, to see how the COVID pandemic is spreading. Now, if a molecular biologist develops such a model, it may not be an accurate model. If only a mathematician develops that model, it may not be an accurate model. We need 3 kinds of people, experts in that team. You need molecular biologists, you need mathematicians, you also need social scientists. For example, when the lockdown was brought in to minimize the spread of the COVID, only the social scientists will know how different groups of people are responding to this lockdown. Or when you brought the vaccination, there was vaccination hesitancy. Only a social scientist can study in which regions there is more vaccine hesitancy. So all those things, components can be incorporated into the model only if there is a social scientist. Only a mathematical expert can design the required mathematical models. A molecular biologist can bring in
the science related to the COVID pandemic. So therefore, it is important, even though you are studying artificial intelligence, I urge you, you please do some courses in social sciences. And why social sciences? Why not you take a course in music? Why not you take a course in dance? Because from different disciplines, you get new ideas to incorporate in your own discipline. So similarly, a dancer can learn artificial intelligence, right? An international relations expert can study mathematics. So we need to encourage this kind of multidisciplinary education. Next question. Yeah. Good morning, sir. I am Abhay Varwal from Himachal Pradesh Technical University. I am pursuing MSc Physics right now. Right. My question is suggestion come my experience which I faced during my BSc. Like we are talking about multidisciplinary subjects, so I want to like enlighten everyone about the benefits which I have like faced due to studying multidisciplinary subjects. Okay, so here is an example. He has taken multidisciplinary courses and he wants to tell how it has benefited him. Please go ahead. Sir. Yeah. Sir, I have done my BSc in Physical Sciences. So during that BSc, in our last year, we have to do a research project. In that research project, we have to consider various parts. Like first thing, our research should be innovative. It should be eco-friendly. It should be like useful to the society. And secondly, it should not have any bad impact on the surrounding. So how this helped me by multidisciplinary systems. Right. Like in my previous semesters, I have studied subjects like SDGs, Sustainable Development Goals. Correct. I have studied human ethics, human values, and research methodology. And with that, ancient sciences. Right. So how it helped me, like research methodology tells me how to do a hypothesis, how to start a research paper by just first step is literature review. You have to review various literatures, not only that include your particular subjects, Correct. but also the fields related to that particular subject in which you are trying to work. What about works and ethics? Like ethics that helps me how to incorporate my hypothesis in a particular way that my resultant is equivalent to the surrounding, to the society, and in a very impactful way. Second thing, I was being a part of NSS, National Service Scheme, for 3 years. So also it helps me to understand the society in a very ground level way. So my experience for all 3 years in my BSc is that multidisciplinary plus all these extracurricular activities and with your academics. Right. When you combine them all, you accumulate all the experiences which you have gained through all these 3 semesters, because our university is trying to adopt NEP in a very progressive way. Right. And I literally admire my teachers and my university for that effort. That due to that, I like to understand the importance of this. Right. So multidisciplinary education does help. And also to the question of values and ethics, what is the purpose of education? Education should help you in recognizing your inner potential. Education should help you in performing at the best of your potential. And then what is the purpose of doing this? When you recognize your potential and you perform at the best of potential, the goal is not only for your personal development, but it is also to create a positive change in the lives of people around you. And you will do that only when you develop a set of values in your life. First of all, recognizing that you are not an independent person, you are in a society. So we are all interdependent on each other. We must help each other. We must cooperate with each other. So that is where the values will come into picture. And then we have seen how certain technologies can be used for purposes for which they are not intended to be used. So how do we draw a line between what we call is good for society or not good for society? And that is where the ethics will play an important role. Otherwise, ChatGPT, take the example of ChatGPT, how it can be misused. So for that reason, we have now introduced both value education and education based on ethics in our national education policy. In the 4-year undergraduate program, for example, students will have an opportunity to take value based courses, and they can also ability courses, skill based courses, and so on. So there are multiple opportunities for you
to take these kind of courses. Yes, let's go to the next question. सुप्रभात सर, मैं रावल द्रुमी गुजरात यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी परस्यू कर रही हूँ. सर मेरे 2 सवाल है. हम इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों ना इसी को एक कोर्स में बदला जा सके. मतलब अभी हम पे डिपेंडेंट है ये कि हमको करना है या नहीं करना है. वाई क्यों ना ऐसा हो सके कि हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने के साथ साथ ऐसे ही कुछ अलग कोर्सेज, मतलब सोशल साइंस के कोर्स भी हम पढ़ सके, Right. और हमारे करिकुलम में ही वो सब कुछ मतलब शामिल कर दिया जाए, ताकि हमको उसके बेनिफिट्स पता ही चल जाए. मतलब कि वो इलेक्टिव होंगे वैसे भी, लेकिन आगे जाके हम उसको परस्यू कर पाएंगे. Correct. और सर मेरा दूसरा सवाल यही है कि 2047 तक हम ये सोच रहे हैं कि हम एक डेवलप्ड नेशन बन सके, लेकिन अभी जो ब्रेन ड्रेन का जो प्रॉब्लम चल रहा है, आप उसको किस तरह देखते हैं? क्या ये हो सकता है कि हम बाहर के देश में जाए, हमारी संस्कृति फैलाए, वहाँ से कुछ सीख के वापस भी आ सकते हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, सबको पैसा कमाने की जो दौड़ लगी है, उसकी वजह से वहाँ पे सेटल हो जा रहे, पढ़ाई करके वापस आके यहाँ के लिए कुछ करे, उसके लिए हम कैसे हमको भी मोटिवेट कर सके, और आप भी किस तरीके से आप इस चैलेंज को देखना चाहते हैं और सॉल्व कर सकते हैं सर? बहुत अच्छी क्वेश्चन है. देखिए, हमारा एजुकेशन में जब हम मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, अलग अलग कोर्सेस हैं और हर एक कोर्स का इम्पोर्टेंस को भी हम जानते हैं. तो आप कह रहे हैं कि क्यों आप इसको मैंडेटरी आप क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंडेटरीली आप सिलेबस में रखिए, बिकॉज हर एक कोर्स इतना इम्पॉर्टेंट है, तो हम ज़रूर ये सभी सब्जेक्ट्स को हम पढ़ सकें. लेकिन हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट्स अपने आप चूज़ करना चाहिए, स्टूडेंट्स को फ्रीडम होना चाहिए चूज़ करने में. आप सभी लोग अडल्ट्स हैं, आप सभी लोग सोचते हैं हमारा देश के लिए हम क्या करना चाहिए, हमारा दुनिया के लिए हम क्या करना चाहिए. आप ही डिसाइड करना चाहिए कौन सा कोर्सेस आपका डिग्री में इसको लिए तो अच्छा होगा, आप ही डिसाइड करना चाहिए. मान लीजिए हम 10-20 कोर्सेज को हर एक डिसिप्लिन में जो एक्सपर्ट है वो कहेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स को मैंडेटरीली टीच करना है, तो आपके पास क्या चॉइस रहेगा? हम स्पून फीडिंग करते रहेंगे क्या? हमारा युवा लोग ऐसे लोग हैं क्या कि हम स्पून फीड करना है? ये इंडिपेंडेंटली थिंक कर सकते हैं, इसलिए हम फ्रीडम देना चाहते हैं. और दूसरा प्रश्न आप जो पूछा ब्रेन ड्रेन के बारे में, देखिए हमारा देश अब दुनिया में बहुत हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है. आसपास 1.4 बिलियन पीपल आर देयर इन आवर कंट्री. और हमारा एजुकेशन सिस्टम भी बहुत बड़ी एजुकेशन सिस्टम है दुनिया में. अभी हमारा स्कूल सिस्टम में 26 करोड़ स्टूडेंट्स हैं. हायर एजुकेशन में जैसा आप लोग यूनिवर्सिटीज़ में हैं 4 करोड़ लोग हैं. अगले सालों में ये नंबर हम बढ़ाना चाहते हैं. 2035 तक हमारा GAR को हम 50% करना चाहते हैं. तो इतना लोग हमारा स्कूल सिस्टम से यूनिवर्सिटी सिस्टम में आए, तो क्या हम सभी को अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं क्या? कुछ लोग बाहर जाना चाहिए, तो हमारा देश तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, इनका भी हक हो सकता है कि मैं दूसरा देश में पढ़ना चाहिए तो मैं जा सकता हूँ. तो उसलिए हर एक साल कम से कम 5-6 लाख लोगों ने बाहर जा रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए. ऐसे स्टूडेंट्स जाते रहेंगे, इससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट्स नॉट ए प्रॉब्लम फॉर अस, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर आवर स्टूडेंट्स टू स्टडी एल्सवेयर आल्सो. और देखिए हमारा देश से जो स्टूडेंट्स बाहर देशों में जाके पढ़ते हैं,
अब ग्लोबली हमारा इंडियन डायस्पोरा इतना स्ट्रांग है, इतना अच्छी तरफ से अलग अलग एरियाज में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये भी हमारा देश के लिए एक प्राइड होना चाहिए। रिसेंटली द चीफ ऑफ वर्ल्ड बैंक ने कहा, अजय भल्ला है ना, चीफ ऑफ वर्ल्ड बैंक, इन्होंने कहा आई एम द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मेड इन इंडिया। पूरा इधर इंडिया में पढ़ के अब ग्लोबल बैंक को चीफ है। क्या ये हमारा प्राइड नहीं हो सकता है? क्या हमारा प्राइड है। और देखिए हमारा देश में भी हम कोशिश करना है कि हमारा एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज होने के लिए हम कोशिश भी करना है। इसीलिए हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लाया। और आप पिछले 10 साल से आप देखें तो नई यूनिवर्सिटीज़ को हम बना दिया, नए कॉलेजेस को खोल दिया, इतना IIMs को, एम्स को हम खोल दिया। तो ये प्रक्रिया तो चलते रहेगा, हम यूनिवर्सिटीज़ को बिल्ड करेंगे, कॉलेजेस को बिल्ड करेंगे, ताकि हमारा GER 50% तक जाना है। ये सभी लोगों को एकोमोडेट करना है। इसके अलावा भी कुछ लोग हो सकता है कि कुछ शहर को आके पढ़ना मुश्किल हो सकता है, फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता है। तो जैसे स्टूडेंट्स को हम कैसा हमारा हाई क्वालिटी एजुकेशन वो स्टूडेंट घर तक हम कैसा पहुंचेंगे, ये भी हमारा एक गोल है। इसलिए हम डिजिटल एजुकेशन को, ऑनलाइन एजुकेशन को भी प्रमोट कर रहा है। आप सोच सकते हैं कि क्लासरूम एजुकेशन से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है, ऑनलाइन एजुकेशन इतना हाई क्वालिटी नहीं हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं, आजकल ऑनलाइन एजुकेशन भी बहुत पॉपुलर हो गया। और जो स्टूडेंट्स शहर को आके नहीं पढ़ सकते हैं, इनको हम ऑनलाइन एजुकेशन नहीं दिए तो क्या दूसरा ऑप्शन क्या है इनके पास? इसलिए हम ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करना है और फिजिकल एजुकेशन को भी हम प्रमोट करना है। बताइए और दूसरा। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम आर्यन गुप्ता है एंड आई एम परसुइंग BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। सर जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन है, डाइवर्सिटी ऑफ कोर्सेज है एंड ऑल दैट है, लेकिन सर जो हमारा इंडियन यूथ है कन्फ्यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो जैसे जैसे हमारे पास कोर्स की डाइवर्सिटी आ रही है, उसी के पैरेलल में कन्फ्यूजन भी आ रहा है। तो सर हम उसको कैसे टैकल कर सकते हैं कि इतने सारे हमारे पास कोर्सेज हैं, तो हम अपने कन्फ्यूजन को कैसे दूर करें, या फिर UGC इसमें कैसे हेल्प कर रही है स्टूडेंट्स की कि हम इस कन्फ्यूजन को दूर कर लें? ठीक है, तो रिसेंटली हम नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को रिलीज़ किया। ये नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क में हम डिफ़ाइन किया हर एक सेमेस्टर में आप कितने क्रेडिट्स करना है और इसका लर्निंग आउटकम्स क्या होना चाहिए। तो हम ये भी डिसाइड किया कि आप मेजर करना चाहिए तो कितना मिनिमम क्रेडिट्स करना है, माइनर करना चाहिए तो कितना मिनिमम क्रेडिट्स करना है। ये बेसिक स्ट्रक्चर को हम बना दिया और इसके बाद आप चूज़ करना है आप क्या बनना चाहते हैं आगे सालों में, क्या आपका गोल क्या है। क्या आप एक इकोनॉमिस्ट बनना चाहते हैं, एक जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, एक राइटर बनना चाहते हैं, एक म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, आप चूज़ करना है। एक गोल चूज़ करने के बाद आप you can discuss with your faculty mentors and then decide the courses, which courses you need to take, and then move forward. So since there is a national credit framework and then you have also decided what is your goal in your life, you can put these two together and then design your own course. And that is the idea behind giving this freedom, flexibility and choice so that you can design your own course. And let me also tell you that maybe initially you thought you want to become an economist, later you have changed your mind and you want to become maybe a journalist. So you should be able to change the course and pick up the required credits and move on, right? So don't think that giving freedom, flexibility and choices will create confusion. Right? Everything is well structured. Good morning, sir. My name is Vibha Kanjani. I'm doing Doctor of Pharmacy from LM College of Pharmacy, Ahmedabad. Firstly, I'm truly grateful to UGC for this memorable experience. Sir, my question comes a challenge that I see
in my curriculum that Doctor of Pharmacy, a degree, it is not very recognized in India. It was started in 2008, but still the awareness is not there. So what a general trend that I see in PharmD graduates, that they move out of the country to pursue higher education like MS and MD in other foreign countries, because other foreign countries allow them to pursue these courses after PharmD. So I feel that there is lack of opportunities in our India for our curriculum. So what role would national education policy will play to create more opportunities for us so that we stay in our country and make our country more proud? You know that India leads in the pharmaceutical industry. And sir, I'm proud to say that my college stands number 1 in pharmacy in India. All right. So if the industry is very strong, obviously there should be more job opportunities. And the way our pharmaceutical industry rose to the occasion during COVID pandemic, it is admirable, right? We not only created the vaccines for our own country, but we also supplied it to several countries across the globe. So there are enough opportunities for pharmaceutical students, both in industry and in other places, in research labs, for example. Right? Yeah. Next question. Let me ask you one question before you raise your question. You know, India has contributed in various disciplines, be it medicine, be it architecture, be it law, be it social sciences, and in many areas for thousands of years India has contributed immensely, right? Yoga, Ayurveda, for example, astronomy, right? Indians have contributed enormously, mathematics, but somehow our younger generation has lost touch with that knowledge. So this entire knowledge which has been developed by Indians over a period of thousands of years, it is called Indian knowledge system. And Indian knowledge system can actually be studied together with the contemporary knowledge to find solutions which are accessible to people not only within India but across the world. Can we come up with simple solutions for many of the problems that we are facing? For example, environmental degradation is a major problem. Climate change is a major problem. But for thousands of years, Indians have recognized the importance of protecting the environment. Indians have recognized the need to live in harmony with both living beings and also non-living beings, right? Can we use that knowledge to tackle the modern problems of climate change? For example, the water management that our ancient Indians did, the way they built ponds to preserve water so that that can be used for drinking and agricultural purposes. And even today in some places, one of you is from Rajasthan, right? In Rajasthan, for example, how the animals are protected, right? We consider them as part of us and we protect these wild animals. So when we talk about reduction in biodiversity, you know, unless we protect all other living beings together along with us, how can we protect our environment? So can we introduce some of this wisdom and knowledge that has been developed in India as part of our regular education? So we are working on that, how to introduce. Let's say you are studying physics. Can we have few lectures on Indian knowledge systems and see how our own Indian knowledge has contributed to the growth of physics? So what is your view? I would like to hear from you. Yeah. Thank you, sir, for bringing up this topic, because this topic is something which is close to my personal self. Because Vedic science or our ancient Indian science is the most prominent and most prestigious, like what we call the Dharohar for us as in a science student. If I do not consider Vedic science as a basic step for the knowledge,
then I think I'm not a pure science student. Because the scale at which our mathematicians are at that time, the scale at which cosmology, astronomy, astrology has been discussed in ancient times, the infrastructure aspects, the climatical problems which have been tackled, the water conservation problems, the forestry, and all the environment with development has been taken care is like commendably. We should be thankful to our ancient civilizations for giving us such a vast knowledge. Correct. As in physics, and like what you have asked upon the question, like invoking courses like Vedic sciences or Indian knowledge in which we have Vedic physics or astrophysics, which we have included, we can tackle various problems by invocating our previous methods of considering the planetary as well as the effect of those motions on our small body objects. Right, right. So there is a lot of knowledge that is there in Indian knowledge systems. So some of that can be integrated so that we study it in the modern context. For example, आयुर्वेदा है, क्या आयुर्वेदा को हम माइक्रोबायोलॉजी पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हैं क्या रिसर्च शोध कर सकते हैं क्या, सो दैट यू हैव आयुर्वेदा बायोलॉजी फ्रॉम ए मॉडर्न पर्सपेक्टिव. तो ये एक बात है. और दूसरा देखिए, हम सभी लोग सोचते हैं कि इंग्लिश में हम नहीं पढ़े तो हमको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी, और इंग्लिश में नहीं बात करें तो दूसरा लोग सोचेंगे कि मैं इतना एडवांस नहीं है. तो इसके बारे में भी मैं आपका व्यूज़ सुनना चाहता हूँ. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हम हमारा भारतीय भाषाओं को बहुत प्रामुख्यता दिया है, इसलिए कि research has shown that जब भी छोटे बच्चों ने इनिशियली मदर टंग में पढ़ते हैं और इसके बाद इंग्लिश को सीखते हैं, ऐसे बच्चों ने बहुत क्रिएटिव होता है, बहुत इनोवेटिव होता है. देखिए, मेरा मातृभाषा तेलुगु है और मैं तेलुगु को छोड़ के शुरू से ही मैं इंग्लिश में मेरा एजुकेशन हुआ, और रिसर्च दिखा है कि मेरा मातृभाषा को छोड़ के मैं दूसरा भाषा में पढ़े तो मेरा क्रिएटिविटी लेवल्स इतना नहीं होगा एज कंपेयर टू किड्स हु स्टडी फर्स्ट इन द मदर टंग एंड देन लेटर लर्न इंग्लिश. तो इसलिए मैं आपका व्यू सुनना चाहता हूँ. आप क्या सोचते हैं कि मातृभाषा को प्रामुख्यता देना हमारा एजुकेशन में, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? सर, मैं इस बात पे बहुत मतलब आपने जो बोला वो सहमत हूँ पूरी तरीके से, क्योंकि ये मैंने भी खुद ऑब्ज़र्व किया है कि मेरे साथ जो बच्चे हैं वो गुजराती मीडियम मतलब कि हमारी मातृभाषा गुजराती से पढ़ के फिर अभी इंग्लिश में पढ़ रहे हैं. तो हाँ, ये मैंने ऑब्ज़र्व किया कि वो लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं इंग्लिश को अपनी भाषा में समझने के बाद फिर उसको पेपर में या कहीं पे एग्ज़ाम में लिखते हैं. तो हम प्रमोट करना चाहते हैं कि प्लीज़ आप हम मातृभाषा को आगे बढ़ाइए, क्योंकि सच में ये हेल्पफुल होता है. ये हमने वो लोग बोलते हैं कि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, आपको लर्न करना है, आंसर्स लर्न करने में आपको तकलीफ़ नहीं होती होगी, बट मैं ये देखती हूँ कि वो लोग समझ जल्दी जाते हैं. करेक्ट. क्योंकि वो लोग बचपन से अपनी मातृभाषा में पढ़े हुए हैं. क्या आप सोचते हैं क्या आपको जॉब्स मिलना मुश्किल हो जाएगा आप सिर्फ मातृभाषा में पढ़े तो? नहीं सर, ये ऑब्ज़र्व कर रही हूँ मैं कि ये ट्रेंड चेंज हो रहा है. आज अगर मैं कोई इंटरव्यू देने जा रही हूँ तो जो इंटरव्यूअर है वो अभी एकदम फ्लेक्सिबल है हमारे साथ कि आपको जवाब देना है, आप चाहे जो भाषा में दे. वो सच में अब नॉलेज के बेस पे ले रहे हैं, हमारे एजुकेशन के बेस पे ले रहे हैं, ना कि भाषा. सो ये ट्रेंड को चेंज होते हुए हम अभी देख रहे हैं. हाँ, वेरी गुड. और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि हम
इंग्लिश सीखने में हमको कोई तकलीफ नहीं। आप इंग्लिश भी सीखना है एज ए कम्युनिकेशन टूल, लेकिन लर्निंग के लिए आप आपका मातृभाषा को यूज़ कीजिए, सो दैट आप बहुत क्रिएटिव इनोवेटिव बन जाएंगे। इसलिए NEP में हम मातृभाषा को बहुत प्रामुख्यता दे रहा है। सो लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। नमस्ते सर, मैं परनीत कौर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला पंजाब से। सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड है। स्कॉलरशिप्स कहीं ना कहीं कैटेगरी बेस पे मोस्टली मिलती हैं, मतलब SC OBCs या सिंगल गर्ल चाइल्ड वगैरह को, तो कहीं ना कहीं इसमें जनरल कैटेगरी है जो पीछे रह जाती है, और अब मिलती भी है तो मतलब मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को मिलती है। पर ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्कॉलर स्टूडेंट्स हो, कुछ पर्सनल रीजंस के वजह से उनके मार्क्स कम आए हों या वो उतना अचीव ना कर पाए हों। तो मतलब इसका एक सुजेशन ये भी हो सकता है कि स्कॉलरशिप्स के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएं कि अगर स्टूडेंट कैपेबल है तो वो भी ले सके। हाँ, बहुत अच्छा है। देखिए, हमारा यूनिवर्सिटीज़ में अब अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं और PhD प्रोग्राम्स है। PhD प्रोग्राम्स में आप UGC नेट में क्वालिफाई हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, और अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हम कुछ स्कॉलरशिप्स देते हैं स्टूडेंट्स को, और SC ST स्टूडेंट्स को भी हम देते हैं। लेकिन बहुत यूनिवर्सिटीज़ ने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप्स भी देते हैं, और ये ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रमोट करना है। उसीलिए यूनिवर्सिटीज़ ने सभी यूनिवर्सिटीज़ को हम बता दिया कि आप एक एल्यूमिनाई कॉर्पस फंड को तैयार कीजिए। बहुत लोग एल्यूमिनाई जो है लाइफ में बहुत बड़ी पोजीशन में है, यूनिवर्सिटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एक कॉर्पस बिल्ड करके, वो कॉर्पस से स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दे सकते हैं। ये भी हम प्रमोट कर रहा है। अगला सवाल ये है सर कि जैसे अगर एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को मतलब कॉमन प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी वाले एक्शन नहीं ले रहे हैं, या तो हम UGC को कैसे अप्रोच करें? मतलब एक कॉमन ग्रीवियंस सेल कुछ होना चाहिए जो कॉमन स्टूडेंट भी अप्रोच कर सके। एक्सेलेंट। देखिए, कुछ महीनों के पहले हम एक नया रेगुलेशन लाया। ये रेगुलेशन में हम कहा कि हर एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज को ये मैंडेटरी है कि एक ओम्बड्स पर्सन को अपॉइंट करना है, और स्टूडेंट ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी को भी एस्टैब्लिश करना है। तो UGC स्टूडेंट्स का समस्या जो है इसको रिजॉल्व करने के लिए आगे रहना चाहिए, इसलिए हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है। आप ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं, और हम हर एक यूनिवर्सिटी से बात करके वी आर इंश्योरिंग दैट ओम्बड्स पर्सन इज अपॉइंटेड। ठीक है। और दूसरा, आप 3 सवाल आप पूछना चाहते थे। और अगला सवाल सर ये है कि मतलब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से है, मैंने BA ऑनर्स इन साइकोलॉजी की है, पर BA में भी अलग अलग सब्जेक्ट्स इलेक्टिव मतलब आप चूज कर सकते हो। तो मेरे पास एक साइकोलॉजी था, एक इंग्लिश लिटरेचर और एक कंप्यूटर्स, और इंग्लिश और पंजाबी हमें कंपलसरी सब्जेक्ट थे। तो सर मेरा कंप्यूटर में भी बहुत इंटरेस्ट है, चाहे मैंने ऑनर्स साइकोलॉजी में की। तो मतलब जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लेना था तो कहीं ना कहीं वो माइंड चेंज हो रहा था कि कंप्यूटर वाली लाइन में जाते हैं। MSc है जो मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो उसके लिए वो बेसिक क्राइटेरिया ये मांग रहे हैं कि आपको BSc करनी होगी, चाहे नॉन मेडिकल में, चाहे BCA करनी होगी। मतलब वो BA वालों को कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट हमने स्टडी किया है, पर वो कंसीडरेशन नहीं मिल रही कहीं ना कहीं। आप समझते हैं ये ठीक नहीं है ना? यस सर। आप कंप्यूटर साइंस करना चाहिए तो सर। आपको आप एंट्रेंस टेस्ट कुछ है तो आप क्लियर किए तो आपको मिलना चाहिए, नहीं तो बेस्ड ऑन मार्क्स योर अंडर ग्रेजुएट मार्क्स वो भी पॉसिबल होना चाहिए। अब सभी लोग ये सोचते हैं कि आपका सब्जेक्ट एक हो सकता है अंडर ग्रेजुएट में, आके आप एक माइनर भी किया, लेकिन आप माइनर में मास्टर करना चाहते हैं,
नहीं तो कुछ अलग सब्जेक्ट में आप मास्टर करना चाहते हैं, आप किसी ने आप फार्मास्यूटिकल साइंसेस किया और बाद में आप मास्टर्स करना चाहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, क्लाइमेट चेंज में आप मास्टर्स करना चाहते हैं, क्या आपको ये पॉसिबिलिटी ऐसा हुए तो अच्छा होगा? मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन मैं सुनना चाहता हूँ, है ना, ऐसे मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन को प्रमोट करना है ना, तो मैं आपको फुल्ली सपोर्ट करता हूँ। आप बीएससी फिजिक्स हो लेकिन आप एमए इकोनॉमिक्स करना चाहिए तो आपको सीट मिलना चाहिए, लेकिन इकोनॉमिक्स में भी आप मास्टर करना चाहिए तो कुछ बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। तो आप कुछ ब्रिज कोर्सेज करके नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी जब आएगा, नहीं तो स्वयं में कुछ ब्रिज कोर्सेज, बेसिक नॉलेज इन इकोनॉमिक्स भी आपको चाहिए, मास्टर्स करना चाहिए। तो ये कोर्सेज करने के बाद मैं भी सोचता हूँ कि आपको अलग सब्जेक्ट में भी आपको मास्टर्स करने में आपको अवसर मिलना चाहिए। मैं कम्प्लीटली सपोर्ट करता हूँ। और मैं यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर जो है, मैं इनसे भी जब बात करता हूँ इसके बारे में मैं हमेशा बात कर रहा हूँ कि ये पॉसिबिलिटीज़, ये अवसर हमारा स्टूडेंट्स को देना चाहिए। मैं एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपका अध्यापकों में क्या देखना चाहते हैं? क्या आप हमारा अध्यापकों में क्या लिमिटेशंस है? मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। मैंने बहुत जनरली देखा है कि 3 घंटे की मूवी देखना बहुत आसान है, पर 3 घंटे का लेक्चर निकालना बहुत मुश्किल है। तो सर मूवी एंटरटेनिंग आप कह रहे हैं 3 घंटे का, हमारा ह्यूमन अटेंशन स्पैन इज ओनली हाउ मच? 45? नहीं, ये 7 मिनट्स है। 7 मिनट्स में हमारा थॉट प्रोसेस अलग दूसरा जगह में चले जाएगा। तो इसलिए बेटर कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट्स, डिस्कशन, नॉट वन साइडेड टीचिंग, ये पूरा इम्प्लीमेंट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप बताइए सर। तो मूवी में गाना आता है, 2 लोग अच्छा समझाते हैं, बहुत अच्छा ड्रामा होता है, तो वो इंटरैक्टिव होता है, ध्यान नहीं भटकता उसमें, और उसकी स्टोरी साल के बाद भी पूछोगे तो याद रहती है। तो एजुकेशन में भी ऐसा होना चाहिए कि जो हमारा टीचर हो वो ऑलराउंडर हो, वो बीच में जोक्स भी क्रैक कर ले, हमको ऐसे कहानी के तरीके से पढ़ाए कि हम चाहे हमें 1 साल बाद पूछे तो भी हमें याद रहे। कहीं ना कहीं हम एग्ज़ाम के बाद भूल जाते हैं जो हमें पढ़ाया जाता है। तो हमारा टीचर ऑलराउंडर होना चाहिए कि वो सब कुछ करे और हमारा इंटरेक्शन, हमारा अटेंशन स्पैन सीख करता रहे। डेफिनेटली, आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू। इसलिए क्लासरूम में जब लेक्चर होता है, ये डायलॉग होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, वन साइडेड नहीं होना चाहिए। लेकिन एक कैसा हम रियलाइज़ कर सकते हैं? तो टीचर्स को हम ट्रेनिंग करना चाहिए। हर एक यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में आप कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स को बुलाइए, और पेडागॉजिकल अप्रोचेस, नया टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करना है हमारा टीचिंग में, असेसमेंट में। क्या आप लर्निंग, द टीचिंग लर्निंग मेथड्स, कैन यू चेंज इट एंड मेक इट मोर कंटेम्पररी? ये पूरा करने के लिए अब हम मालवीय मिशन को स्टार्ट किया। ये मालवीय मिशन में, मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम को हम शुरू किया। हमारा गोल ये है कि अगले 2-3 साल में 15 लाख टीचर्स जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, ये सभी को हम ट्रेनिंग देना चाहते हैं और ऐसी विषय के बारे में सेंसिटाइज करना चाहते हैं। और बताइए सर, जैसे कि अब एक बात होती है कि यूजीसी की तरफ से गाइडलाइंस आ जाते हैं किसी भी चीज़ के लिए प्रॉपर, कोई जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है तो यूजीसी की तरफ से उसके लिए क्लियर कट गाइडलाइंस हैं, बट कई बार ये होता है कि वो ग्राउंड लेवल पे वो चीज़ फॉलो नहीं होती है। तो जब वो स्टूडेंट्स फेस करते हैं दिक्कत, जब वो बाहर कहीं जाते हैं, जैसे हम अब स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे वो गाइडलाइंस प्रॉपर नहीं फॉलो हो रही हैं और हमने मास्टर्स में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है, देन हमें वहाँ पर दिक्कत होगी उन चीज़ों में क्योंकि वो मिसमैच कर रहे हैं उनकी आपस में कंडीशन। देन उसमें से स्टूडेंट क्या कर सकता है जब यूनिवर्सिटी यूजीसी की गाइडलाइंस को प्रॉपर्ली फॉलो ही नहीं कर रहा है, देन एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए सर आपके हिसाब से? आप आपका वाइस चांसलर के पास जाइए। हम ये चाहते हैं, यूजीसी ने ये कहा, ये गाइडलाइंस दिया, ये रेगुलेशन लाया, आप क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है? सर आप जाके वाइस चांसलर से बात कीजिए, आपका डीन से बात कीजिए,
तो एक कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए। यूजीसी तरफ से हम भी ये बात वाइस चांसलर से कर रहा है, टू मोटिवेट देम टू क्रिएट मोर अवेयरनेस। अवेयरनेस का भी प्रॉब्लम है। हम शहर में और थोड़ा शहर के नीचे दूसरा छोटा शहर को गए तो एनईपी के बारे में पता है, लेकिन आप विलेज लेवल तक, छोटा कॉलेज तक गए तो एनईपी के बारे में इतना अवेयरनेस नहीं है। इसलिए हम रिसेंटली एनईपी सारथी स्कीम को शुरू किया। इसमें हम 702 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया पूरा देश से। ये हमारा सारथी बनेंगे और कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार्स, वर्कशॉप्स कंडक्ट करके सभी स्टूडेंट्स को अवेयरनेस लाएंगे। एनईपी का मतलब क्या है, एनईपी को हम क्यों इम्प्लीमेंट करना है। और मैं स्टूडेंट्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप एनईपी इम्प्लीमेंटेशन में आप भी मुख्य पात्र आप भी कर रहा है इसमें, तो सभी को मेरा धन्यवाद। और एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हम 2 साल के पहले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को हम इंट्रोड्यूस किया, हाँ CUET को इंट्रोड्यूस किया। आप नहीं लिखा होगा, लेकिन अब तो आप लिखा, गुड गुड। CUET के बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं पहले इसका उद्देश्य, मैं CUET क्यों हम इंट्रोड्यूस किया मैं बताना चाहता हूँ। आप कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। देखिए, हमारा देश में 65 स्कूल बोर्ड्स हैं। हर एक बोर्ड में अलग अलग वेस में एवेल्यूएशन होता है। कुछ स्टेट्स में 99% लाना बहुत ही ईजी है, और सेम लेवल ऑफ नॉलेज को और कुछ स्टेट्स में 75% टॉपर को आना भी बहुत मुश्किल है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, इसलिए हम CUET को इंट्रोड्यूस किया। और CUET अब 13 लैंग्वेजेस में, एक इंग्लिश है, 12 भारतीय भाषा में हम CUET को कंडक्ट करते हैं। और देखिए, CUET इज़ ए मशीन ड्रिवन प्रोसेस, whereas बोर्ड एग्जाम्स आर ह्यूमन ड्रिवन प्रोसेस। मैं हर एक क्वेश्चन को, थियोरेटिकल क्वेश्चन को चेक करना है, और सेम क्वेश्चन को मैं 100 आंसर स्क्रिप्ट्स को चेक करे तो इसमें अंतर आएगा, तो ये स्टूडेंट का फ्यूचर को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए हम CUET को एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड लाने के लिए हम इंट्रोड्यूस किया। CUET इंट्रोड्यूस करने के बाद ये भी हमारा सामने आया कि यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी बढ़ गया। अलग अलग स्टेट से स्टूडेंट्स आके इधर पढ़ रहे हैं। जैसा आप अलग अलग स्टेट से आया और अलग अलग भाषाओं ने आप बात करते हैं, लेकिन आप फ्रेंड्स बन गया। ऐसे ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में नेशनल इंटीग्रेशन भी बढ़ जाएगा। अलग अलग स्टेट से आके एक साथ रह के पढ़े तो ये भी बहुत अच्छा है। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, CUET के बारे में आप क्या सोचते हैं? सर, मेरा मानना CUET के बारे में ये है कि CUET क्लियर करना हमारे लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे रेगुलर मार्क्स बेसिस हम लोग को एडमिशन्स मिलते थे। क्योंकि जैसे आपने कहा कि हर कॉलेजेस के मार्क्स सिस्टम अलग अलग है और उनके क्रेडिट्स और चेकिंग करने का पैरामीटर भी अलग है। बट CUET का एक हमारे पास बेस्ट बेनिफिट ये है कि इसमें हमें JEE या नीट की तरह कोई हमें एडवांस नहीं पढ़ना पड़ता। जो हमने, अगर फॉर एग्जांपल मैंने MSc के लिए CUET दिया था, तो BSc में 3 साल में जो भी मैंने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, अगर मैं उन्हें ही बस ध्यान से पढ़ लूँ, देन I can or anyone can clear CUET without any coaching or without any online classes. Great. आप बताइए। मैंने CUET अटेम्प्ट किया था लास्ट ईयर, सो आई फेल्ट दैट कि एग्जाम का जो लेवल था दैट वाज एप्ट फॉर अ स्टूडेंट हु हैज जस्ट पास 12th स्टैंडर्ड। एंड पहले मैंने अपने सीनियर्स को देखा है कि उनको बहुत सारे एग्जाम्स देने पड़ते थे। किसी भी यूनिवर्सिटी के, हर यूनिवर्सिटी अलग स्कोर मारती थी। कोई JEE देख रहा है, कोई बोर्ड्स के स्कोर देख रहा है। तो CUET आने के बाद एक कॉमन स्कोर हो गया है कि ऑल द यूनिवर्सिटीज आर एक्सेप्टिंग दैट, सो इट इज़ रियली हेल्पफुल। राइट। क्या कोचिंग चाहिए क्या CUET लिखने के लिए? सर, अलग से कोचिंग सब्जेक्ट पढ़ने के लिए तो नहीं, लेकिन किस तरीके से सवाल को हम अटेम्प्ट कर सके, बस उसी के लिए। इसके लिए मॉक टेस्ट भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अरेंज किया। ये मॉक टेस्ट करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
लेकिन इसके अलावा आपको स्पेशल कोचिंग का ज़रूरत नहीं है। आप 12 क्लास में जो सिलेबस है इसको अच्छी तरफ से पढ़ लीजिए, 12 एग्ज़ाम को अच्छी तरफ से करने के लिए कोशिश कीजिए, वो आपको CUET में हेल्प करेगा। और मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप सभी ने कहा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाना चाहिए, और मैं जानना चाहता हूँ, एक दिन के लिए आपको वाइस चांसलर बनाए तो एक यूनिवर्सिटी को, क्या बदलाव आप लाना चाहते हैं? मैं हर एक को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ब्रीफली संक्षिप्त में आप बता दीजिए। मैं इधर से शुरू करूँगा। Good morning, sir. My name is Akanksha Sharma. I am pursuing BTech in Computer Science Engineering. तो from Himachal Pradesh Technical University. सर जो हमारा कोर्स है, करिकुलम है, तो उसमें हमारे पास जैसे जो ओल्ड लैंग्वेजेस हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, जबकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है। तो मैं उसके लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मतलब वो कोर्सेज हमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको ज़्यादा बढ़ाया जाए। आप वाइस चांसलर है एक दिन के लिए? सर तो वाइस चांसलर बन के मैं मतलब यूजीसी को रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। ओके आप बताइए। सर अगर मैं वाइस चांसलर बनूं तो मैं एग्जामिनेशन की जो चेकिंग सिस्टम है और जो हैंडलिंग सिस्टम है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट बनाना चाहूँगी, ताकि जो आजकल जो रिफॉर्म्स इन एग्जामिनेशंस ये आप लाना चाहते हैं। गुड गुड। सर सबसे पहला तो सिलेबस रिवाइज करवाना, और सेकंड थोड़ा सा एडमिशन क्राइटेरिया में चेंजेस, और थर्ड में जो रिजल्ट्स लेट डिक्लेयर करते हैं वो टाइम पे, ताकि हम आगे भी एडमिशन बच्चे ले सकें। वेरी गुड। सर इफ़ आई एम अ वाइस चांसलर ऑफ एन यूनिवर्सिटी, मेरा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि मैं जो मेरी फैकल्टी, मेरा स्टाफ है, उसको मैं एकेडमिक से साथ इंटरपर्सनल स्किल्स भी मैं उनकी डेवलप करवाऊँ, ताकि वो बच्चों से एक मच बेटर वे में इंटरेक्ट कर सकें, उन्हें पढ़ा सकें, उनके वेल विशर्स, उनके गाइड, उनके मेंटर्स बन के साथ में, ताकि वो अच्छी तरह उस चीज़ को समझ सकें। राइट राइट, आप लीजिए। सर अगर मैं वाइस चांसलर बनती हूँ एक दिन के लिए, तो मैं चाहूँगी कि उन सब्जेक्ट्स पे फोकस किया जाए जो क्लिनिकल एस्पेक्ट से जुड़े हो। अभी भी हमारा एजुकेशन सिस्टम थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करता है। तो बीइंग अ साइंस स्टूडेंट आई फील practicals are more important. So I would pay more focus on practical system than theory. So learn through doing. Yeah. That is what you want. Learn from your mistakes. So practical करते करते समझ आएगा क्या गलती थी। Right, right. आप बताइए। सर अगर मैं वाइस चांसलर बनती हूँ तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जो डिजिटलाइज्ड हो गया है एजुकेशन सिस्टम, आज पीपीटी के थ्रू समझाते हैं, पढ़ाते हैं टीचर्स, सो दैट इज़ अ गुड पॉइंट। बट फिर भी लिखा हुआ पीपीटी थोड़ी बोरिंग लगती है और वो बोलते जाता है तो वो अच्छे से समझ नहीं आता या कंसंट्रेट नहीं हो पाता है। जैसे अदर ऐप्स है जो यूट्यूब है, जैसे बाईजूस है, ऐसे ऐप्स है जो ग्राफिक्स यूज़ करते हैं, एनिमेशन यूज़ करते हैं उसके लिए पढ़ाने के लिए, जो हमें याद रहता है। तो मैं ये इम्प्लीमेंट करना चाहूँगी कि पीपीटीज़ ही नहीं, एनिमेशंस के थ्रू एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। और दूसरी चीज़ ये सर कि जैसे हम ग्लोबल प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, जैसे आपने बोला कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए आपने स्टूडेंट्स की हेल्प ली, जो ग्रुप है जो प्रमोट करने वाला है। सो आई थिंक दैट फॉर abhiyans that is going on in India, like Digital Bharat and Swachhta Abhiyan and all, we should appoint student ambassadors that promote these abhiyans, not on annual basis but regular basis, sir. तो जब आप वाइस चांसलर बनेगी, आप टीचिंग में ये भी इंट्रोड्यूस करना है AVGC को, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स। Education should be enjoyable, learning should be enjoyable. और जो आप बता रहे हैं, जब आप VC बनेंगे क्या आप करेंगे, थोड़ा आप ध्यान से कहिए, ताकि ये पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है। जब फ्यूचर में आप VC बनाएंगे, किसी स्टूडेंट्स आके कहेंगे कि आप उस दिन ये कहा, तो इम्प्लीमेंट कीजिए। I mean it, sir. I mean it. Sir, as I'm doing veterinary medicine, so what I have realized is कि जब हम मेडिसिन की बात करते हैं तो हमेशा हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है MBBS,
और ये चीज़ मैंने देखी है कि मेरे खुद के कॉलेज में 80% से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनका हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस था MBBS, इंक्लूडिंग मी. So when I entered in this profession, I realized there's so much to explore in this also, जिसके बारे में पता ही नहीं है. तो अगर मैं VC बनती हूँ तो मैं अपनी कॉलेज जो है उसके बच्चों को पहले तो ये बताना चाहूँगी कि अगर नहीं भी हुआ तो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं. तो उनको अवेयर करना फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंड, स्टूडेंट का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल्स, क्योंकि बहुत से बच्चे थ्योरेटिकल उसमें इतने अच्छे नहीं होते, स्किल बहुत ज़्यादा होती है जो कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम इस तरीके से है, हम मार्क्स के बेसिस पे हमेशा वो करते हैं, जो लिखा है आपने उसके अकॉर्डिंग होगा. तो दैट आई वांट टू आल्सो ऐड कि स्किल्स के बेसिस पे थोड़ा ज़्यादा एनालिसिस रहे एज कम्पेयर टू. वेरी गुड. सर एज शी सेड, मैं थोड़ा सा फर्दर ऐड करूँगा उसमें. मेरी स्किल्स है किसी, जैसे आई एम लर्निंग पाइथन, मेरी स्किल्स है उस लैंग्वेज में. आई विल इम्प्लीमेंट अ सिस्टम, जैसे कंटिन्यूस एवेल्युएशन हो रहा है, आप टेस्ट दीजिए, आप अगर उस टेस्ट को एस करते हो या फिर आपके सर्टेन पैरामीटर से ऊपर मार्क्स हैं तो आप उस कोर्स से एग्जाम्ड हो. यू ओनली नीड टू गिव फाइनल एग्जाम्स सो दैट यू कैन बी गिवन द क्रेडिट्स. आप उस टाइम को किसी और काम में लगा सकते हो जो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है आपके लिए, अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग दैट थिंग यू ऑलरेडी नो. गुड गुड. आप बताइए. सर माई सेल्फ रौनक पंचाल. अगर सर मैं एक दिन के लिए वाइस चांसलर बना तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सर हमारे जो फैकल्टीज़ और टीचर्स हैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे कि सर अभी AI का ज़माना है वो सब है, तो सर ऐसे कोई टॉपिक्स है कि जिसका विजुअल मतलब एनिमेशंस के थ्रू स्टडी हो सकता है. जैसे कि सर कोई टेक्निक है तो वो क्या सिलेबस में थियोरेटिकल बताते हैं वो लोग, तो अगर उसको एनिमेशन के थ्रू या फिर कोई वीडियो के थ्रू अगर बताएंगे तो स्टूडेंट्स उसको ज़्यादा कोरिलेट कर सकेगा. और सर दूसरा पॉइंट ये भी है कि सर जैसे कि हमारे सिलेबस में पुरानी मेथड्स दी होती है, जैसे कि कोई एनालिटिकल मेथड है, जैसे कि हमको अभी टाइट्रेशन मेथड ही सिखा रहे हैं, मतलब वो होती है सर नई टेक्निक्स पर उतना डिटेल्स नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं वो. तो सर मैं फैकल्टीज़ को वो भी रिक्वेस्ट करूँगा कि सर वो अभी जैसे रिसेंट टाइम में जो टेक्निक्स है वो स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करें, आने वाले सालों में वो कैसे हेल्पफुल हो सकती है वो सब. और सर दूसरा भी एक पॉइंट है, जैसे कि सर मैं सिलेबस को रीस्ट्रक्चर करना चाहूँगा. जैसे कि सर क्या होता है कि कोई सब्जेक्ट है तो सर अभी हम मान लेते हैं कि 3 महीने का सेमेस्टर है मतलब, तो सर वो सिलेबस ऐसा बनाते हैं कि वो 3 महीने में कवर ही नहीं हो सकता सर. तो उसमें क्या स्टूडेंट्स का एक ड्रॉबैक रह जाता है और फैकल्टी चाहे तो भी नहीं पढ़ा सकती उतना सारा. आप इतने आइडियाज आप बता रहे हैं, आप एक दिन के लिए आपको VC बने तो कोई फायदा नहीं, आपको 5 साल बनना चाहिए. नेक्स्ट. हाय सर. सर अगर मुझे एक दिन के लिए VC बनाया जाए तो मैं सोचता हूँ कि जो मेन पर्सपेक्टिव है हम थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करते हैं ना कि प्रैक्टिकल्स के ऊपर. और हमें प्रैक्टिकल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि थ्योरी में किसी की विल पावर वो होती है स्ट्रॉन्ग, किसी की नहीं होती. बट जब प्रैक्टिकली किसी चीज़ को करते हो तो आपको वो ज़्यादा याद रहती है वो चीज़, आप उसे बेटर रिमेंबर कर पाते हो कि हाँ मैंने ये चीज़ किया था. एंड सर सेकंड सजेशन जो मेरी रहेगी वो ये रहेगी कि स्टूडेंट्स में अवेयरनेस लाना, कि जैसे टीचर्स हमेशा ही कंप्लेंट करते हैं प्रोफेसर कि स्टूडेंट्स पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन कर रहे हैं या वो पॉलिटिकल प्रेशर डलवा रहे हैं हमारे ऊपर किसी भी चीज़ के लिए. तो मेरी प्रोफेसर से भी यही रिक्वेस्ट रहेगी आप स्टूडेंट से अच्छे से डील करिए, और स्टूडेंट से भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपनी बात प्रोफेसर्स के सामने पहले रखिए, ना कि किसी पार्टी के पास जाइए जो कि आपके आपस में कि तालमेल ना बने. तो वो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, बच्चों को अवेयर किया जाए सर. ओके, वेरी गुड. आप बताइए. गुड मॉर्निंग सर. सर जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारी यूनिवर्सिटी में ये प्रॉब्लम है, रिजल्ट डिले आ रहा है एंड ऑल दैट. अगर सर मैं एक दिन के लिए वाइस चांसलर बनूंगा तो मैं अपने स्टूडेंट से ही पूछूंगा कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है. हाँ. एक कंसल्टेटिव प्रोसेस है, स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना एनी डिसीजन मेकिंग. एक टॉप डाउन अप्रोच नहीं होना चाहिए, बॉटम अप होनी चाहिए, अप्रोच होना चाहिए. बहुत अच्छा है. तो सर मैं अपने ही कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को पूछूंगा कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, और उनमें से जो प्रॉब्लम्स रेलेवेंट है उनको एक साइड करके उन पे सोचा जा सकता है. साइमल्टेनियसली सर मैं अपनी फैकल्टी से भी बात करूंगा कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है. अगर हमारी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट डिले आ रहा है तो शायद फैकल्टी पे भी कोई ऑब्लिगेशंस होंगी कि वो रिजल्ट डिले कर रहे हैं. तो सर दोनों पक्ष को सुन के जो एक कॉमन सॉल्यूशन आएगा मैं उस पर जाना चाहूँगा. और सर अगर मैं एक दिन के लिए बन रहा हूँ तो जो अगले वाइस चांसलर बनेंगे मैं उनको भी समझा के जाऊँगा कि ये प्रॉब्लम है. थैंक यू सर. Very good, very good. It's so nice talking to you and listening to you. You have very clearly expressed your views
that our education system has to be transformed, and UGC is bringing many reforms to bring the changes. I still have a question, sir. You want to become Vice Chancellor once more? Sir, no. As we are talking about national education policy, we are talking about multidisciplinary education, sir. Right. So I think कि अगर किसी को 2 माइनर सब्जेक्ट लेने हो, लाइक जिसको राइटिंग भी पसंद है और म्यूजिक भी पसंद है, Correct. तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो माइनर्स भी एक से ज़्यादा ले सकते हैं? देखिए, आप एक मेजर एक माइनर कर सकते हैं, नहीं तो 2 मेजर कर सकते हैं, और इसके अलावा भी आप दूसरा सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है तो साइमल्टेनियसली अलग डिग्री भी आप कर सकते हैं. ये यूजीसी इसका नोटिफिकेशन भी लाया है. आप फिजिकल मोड में आपका यूनिवर्सिटी में मेजर और माइनर कीजिए, और कोई दूसरा यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन में और किसी दूसरा सब्जेक्ट में आप पढ़ सकते हैं. और जब नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी आएगा, नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी में आप इंस्टेड ऑफ गेटिंग ए डिग्री you can accumulate the credits in the academic bank of credits. So there are lot of opportunities for you to expand your knowledge and the skill set. जब हमने मातृभाषा को प्राइमरी देने के लिए पूछा तो मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं खुद बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हुई हूँ. सो आई थिंक दैट मैं अपने ही मातृभाषा की कुछ ऐसी वोकेबुलरी है जो लैक कर रही हूँ, जो मतलब मेरे दादा दादी है, मेरे पापा है, वो सब बोलते हैं जो वर्ड्स, दैट इज़ द ट्रेजर ऑफ वर्ड्स जो मैं लैक कर रही हूँ. लेकिन इंग्लिश में आई एम फ्लुएंट. सो मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि धीरे धीरे अगर ऐसा चलता रहा तो फिर आने वाली जनरेशन भी ये कल्चर भूल जाएगी, ये वर्ड्स भूल जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी ये मातृभाषा. प्रायोरिटी देना इम्पॉर्टेंट है. आज सर मैं जानती हूँ कि इसकी अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ रही है मातृभाषा में पढ़ने के बाद भी. इंग्लिश इज़ अ स्किल नॉट अ लैंग्वेज फॉर अस. बट सर अभी डिफेंस सेक्टर में अभी भी ऐसा है कि एसएसबी इंटरव्यूज़ में वगैरह बच्चे डरते हैं कि इंग्लिश उन्हें नहीं आती है तो शायद सिलेक्शन नहीं होगा. तो वहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है कि वहाँ पे भी हिंदी या रीजनल लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दी जाए. उधर भी चेंजेस आ रहा है. जैसा आपने कहा, आप इंटरव्यूज़ में चेयरमैन ऑफ द इंटरव्यू कमेटी, चेयरपर्सन ऑफ द इंटरव्यू कमेटी कहते हैं आप जो भाषा में आप कंफर्टेबल हैं उसी भाषा में आप जवाब दीजिए. ये बदलाव आ रहे हैं, धीरे धीरे ये बदलाव आ रहे हैं. सर नॉट ओनली मेजर रीजनल लैंग्वेजेस, जैसे आई एम सिंधी, सो मैंने देखा है कि सिंधी बोलने वाले है ही नहीं. मेरे को भी इतनी अच्छे से आती नहीं. घर में जरूर बोलिए सर. मैं नहीं बोलती तो मेरे पेरेंट्स ने भी बोलना छोड़ दिए, तो दे हैव कम टू हिंदी राइट नाउ. तो जैसे मेजर रीजनल लैंग्वेजेस में तो पेपर भी होते हैं, फिर भी इंटरव्यू भी होता है, पर जो बहुत हमारी कोर लैंग्वेजेस है जो हम कहीं भूल गए हैं, जैसे सिंधी एक उनमें से एक है, तो उनमें भी इंटरव्यू होना चाहिए, उनमें भी हमें पेपर लिखना देना चाहिए. आएगा धीरे धीरे. ऐसा नहीं है कि हम कुछ भाषाओं को प्रामुख्यता देंगे और दूसरा भाषाओं को नहीं है. हमारा देश में हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस आर देयर, और कुछ लैंग्वेजेस को सिर्फ 1000 लोग यूज़ करते हैं. लेकिन अब टेक्नोलॉजी आने के बाद और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वजह से इतना प्रोग्रेस हो रहा है. जब मैं तेलुगु में बात करूँगा आपको सिंधी में आएगा, आपका डिवाइस में साइमल्टेनियसली आएगा. ऐसी टेक्नोलॉजीज अभी डेवलप हो रहा है, और सभी भारतीय भाषा को हम इम्पोर्टेंस देंगे. सभी भारतीय भाषा हमारा भाषा है. तो बहुत धन्यवाद. आपसे मुलाकात करके, आपसे बात करके, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा मुझको. और दिस प्रोग्राम इज़ आल्सो बीइंग वॉच्ड बाय स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री. That is the reason why we used a little bit of English, little bit of Hindi in between, so that everybody can speak and also can understand this program. So we'll meet again, and wish you all the best.